Okay, welcome. It's once again ninth English lesson 1, part 3 of Backing by Jerome K. Jerome. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better do the rest. And I agreed and sat down, and they had a go. Now Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time. यानी अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे बचे हैं. He Harris suggested that since departure time is near, so he and George should finish the packing now. So the narrator should get a rest, and they thought that time is getting near, and they should do the rest of the work, and thought that he and George, that is Harris and George, had better to do the rest. It was now better to give a rest to the narrator, and the rest of the work that was left should be done now by Harris and George. And I agreed and sat down, and they had a go. And narrator says that I agreed upon the proposal, and then they started their job. So the vocabulary here used, we'll simply see it's a little bit of Urdu translation. That is, wanting to start means needing to begin. That's शुरू करने वाले, यानी वो अभी उस काम को अभी वो शुरू करने वाले थे. And had better means should, that what a person thinks that it is good, so that is बेहतर है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं. And had a go means they tried what they suggested, what they offered, they started to try, give it a try. So the grammar and literary devices that have been used here is reported speech. That is, Harris's words are directly conveyed. That what Harris said, they are directly put into the perspective. Then we'll move to the literary device. Again, the irony is here. It is the situational irony that now the narrator calmly steps aside, knowing that they will fail, because he knew that he has the obsession that he knows packing much better than both of them. So he, in a way, he was sure about it that they will fail. That is why it's a situational irony here. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. Now, when they started, at Harris and George, when they started the packing, so they started it with utmost care. They started carefully, and they looked very confident, and they demonstrated the confidence in order to show the narrator that they know a better way of packing. This was something that the narrator noted. So the vocabulary here used is light-hearted, means they were cheerful. They had no issues with their hearts, so that the work is concerned. They were not serious. They thought that it's an easy job. And evidently means clearly, जिसको हम कहते हैं साफ जाहिर होना. और लाइट हार्टेड का अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन चाहेंगे तो इट मीन्स खुश मिजाज, यानी बड़े खुश थे. देन देयर इज इंटेंडिंग, दैट इज प्लानिंग. यानी उनको अब जो भी वो प्लान कर रहे थे, यानी उनको जो जिसको हम कह रहे हैं कि उनका अंदाज जो करने का था, वो उसको जाहिर करता है. और ग्रामर दैट हैज़ बीन यूज्ड हियर इज एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट इज शोइंग देयर मूड. जब हम कहेंगे कि एविडेंटली, इसको मतलब साफ तौर से जो जाहिर हो रहा था, अगर हम देखेंगे कि जो इसमें आप देखेंगे कि एडवर्ब जो होता है ये अक्सर बेशतर जो है वर्ब की हालत को उसको और साफ तरीके से जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. सो दे बिगैन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. तो यहाँ पर इसको जो वर्ब है उसको और ज़्यादा थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है एडवर्ब के ज़रिए से, और इट शोज हाउ देयर मूड वाज. और यहाँ पर भी एक ड्रामेटिक आयरनी है कि जो रीडर है ही एंटिसिपेट्स द डिजास्टर, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ काम. और इसी वजह से शायद उसने उनकी बात को तस्लीम भी किया. आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड. So he was just there, calmly seated, and he was anticipating that something is going to happen. So the narrator actually silently observed, and he was expecting the trouble from their side.
और यहाँ पर जो वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है दैट इज़ कमेंट, दैट इज़ रिमार्क, जिसको हम कहते हैं किसी किसी किस्म का तबसरा करना। कोई तबसरा उसने नहीं किया, कोई बात उसने नहीं की, ही मेड नो कमेंट एट ऑल, उसने कोई तबसरा इस पर नहीं किया, जस्ट ही वेटेड, ओनली वेटेड। ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेस, शॉर्ट सेंटेंस, इट क्रिएट्स suspense when you use a very subtle short way of saying something and hiding a lot। जब आप कोई बात हल्के से करते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ गहरा छुपा हुआ है, तो ये शॉर्ट सेंटेंस जो है सस्पेंस को क्रिएट करता है। और इसके बाद अंडरस्टेटमेंट भी है इसमें, दैट इज़ द काम टोन हाइड्स अम्यूजमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी बातों से ही जाहिर हो रहा है कि अब वो रेडी हो रहा है कि उनके ऊपर जो है जो गुजरने वाली है उस पर वो किस तरह से रिएक्ट करे, कैसे हंसे। दैट वाज द काम टोन हाइड्स द अम्यूजमेंट एक्चुअली। So with the exception of George, Harris is the worst packer in this world. So the narrator claims Harris is extremely bad at packing. So he makes a difference between George and Harris. Somehow he actually accepts that George knows a little bit of packing, but so far as Harris is concerned, he is extremely bad about it. So he was expecting very odd things to happen from his side, that is Harris's side. So exception means exclusion, जिसको हम कहते हैं सिवाय किसी के, जब हम उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं। worst means most bad, जिसको हम बेहतरीन के उलट जब हम कहते हैं बदतरीन, तो that is actually worst. Grammar that has been used is a superlative adjective, that is exaggeration for humor. Worst packer, it's the superlative degree that has been used, and it's a hyperbole also in this world, because here the word has been hyperbole, it has been used in a way in order to overstate the fact. So the term or the phrase that has been used is in this world, it's a hyperbole because it overstates the fact. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. So seeing the many fragile items, that is why he is actually just defining them one by one. You can see it in a row: cups, then kettle, then jar, then pies, then stove, then cakes, then tomatoes. These are the fragile things that the narrator thinks that they will do something with them, and the narrator predicts chaos because there are so many things that he fears that they will be messed up. And it is in a way it is humorous because he was expecting that something will happen. That is why he used this exciting word. इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि दिलचस्प है, दिलचस्प के अलावा ये तंजिया अंदाज से दिलचस्प कह रहा है, तो it's a dramatic way of saying things. So it's a repeated and. Don't just bother about the term. I'll explain it in a different chapter with stronger these examples. But here you have to understand that there is a lot of things, lot of grammatical and literary devices that have been used in order to make it a very good narrative. So it shows clutter, it shows irony, excitement, and actually it is meant to show the disaster that is going to come. It did, and finally the explanation comes. His prediction immediately comes true because he was expecting that something will happen, and now it is shown with this very simple statement: it did. Whatever I was expecting, it happened. So grammar and literary device, it is ellipsis, that is minimalism. It's known as minimalism, that is two-word sentence for comic punch. It did what I say it did. So it's a comic punch. It creates a lot of humor with simple words. They started with breaking a cup, and now he narrates how it happened. After this comic punch, when he utters that it did, now he starts explaining it. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. And what happened? First and the foremost, a cup was broken. And their packing began with damage. Whatever they started with so much confidence, in a light-hearted tone, it turned out to be a mess. And
Their packing actually started with a failure. So it is the anticlimax. They did that just to show you what they could do and to get you interested. So if you try to understand this, how the narrator actually coins this sentence, it shows the sarcasm. He pretends that accident was intentional, that they actually did it with their own intention. It's the sarcasm that I pointed out. So it means opposite to the words. What he wanted to say, he actually means the opposite of it. That's the sarcasm. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and scotched it. And they had to pick out the tomato with a teaspoon. And later, what the damage that started to happen, it continued. And Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. And this is how he crushed the tomatoes under jam. And it is actually in order to show the mess. They were creating a mess there now. Squash here means to crush. Grammar और literary devices की बात करें तो cause and effect यहाँ पर किया गया है. That is bad packing leads to absurd solution. तो यहाँ पर इस तरह से जुमले को बनाया गया है कि असल में वो कहना चाहता है कि वो पैकिंग नहीं जानते थे, तो उन्होंने जो पैकिंग की, अब वो तरतीबवार ये कह रहा है कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने गलतियाँ की. सो द बैड पैकिंग एक्चुअली दैट लीड्स टू एब्सर्ड दिस सोल्यूशन. और विजुअल ह्यूमर भी इसमें है कि मेसी इमेज आंखों के सामने आती है जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ जिसको जहाँ पर रखना था वहाँ नहीं रखा गया, तो उसके बाद उसके ऊपर यानी जो कोई कमज़ोर चीज़ है उसके ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ रखी जाए और उसका जूस निकाला जाए, तो इससे जो विजुअल इमेज आती है, एक विजुअल ह्यूमर भी उससे डेवलप होता है. एंड देन इट वॉज जॉर्ज's टर्न. अब हैरिस की तो बातें हो गई, पहले ही हमने जो है नरेटर सेज दैट हैरिस इज बैड अबाउट द पैकिंग एंड he thought a little bit positive about George, but now it was his turn. And what George did, and he trod on the butter. What he did, he put his feet on the butter. And George's mistake follows immediately after the first episode that Harris did. Trod means stepped on, किसी चीज़ के ऊपर पाँव रख देना. और बटर इट्स द डेयरी फैट, जिसको आप मक्खन कहते हैं. और ग्रामर जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इट इज़ सीक्वेंशियल ह्यूमर, यानी डिज़ास्टर्स कम वन आफ्टर अनदर. तो इस तरह से सीक्वेंशियल ह्यूमर जो है, पहले एक गलती हो रही है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, तो इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम. आई सेड नथिंग, आई केप्ट कॉम. और इसके बाद मैंने क्या किया, आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच दैम. मैं वहाँ बैठा, एक कोने पर, टेबल के कोने पर बैठ गया और वहाँ से मैं उनको देखता रहा. एंड सो द नरेटर एक्चुअली ही साइलेंटली वॉचेस नोइंग इट विल एनॉय देम, बिकॉज उसने तो वो प्याला पिया था जो उन्होंने उसके साथ किया था, तो अब वो ही वॉज एक्चुअली पेइंग देम बैक इन द सेम कॉइन. सो द वोकेबलरी इज एज मीन साइड, जो किनारा होता है वो इस पर खड़ा हो गया. और उसके बाद जो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइस है जो इसमें है, दैट इज द कंट्रास्ट, दैट इज साइलेंस बिकम्स एक्शन. जो वो असल में करना चाहता था उनके साथ, तो उसने खामोशी इख्तियार करके वो सब उनके साथ किया. सो इट मीन, और ये पैसिव एग्रेशन को भी शो करता है. इट मीन्स द ह्यूमर थ्रू रेस्ट्रेंट. तो ये यहाँ पर अपने आप पर अपने जज्बात को काबू कर रहा है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, उनको कुछ नहीं बता रहा है, उनको करने दे रहा है जो वो कर रहे हैं. बस he watches them. It irritated them more than anything I could have said. Now see, what I explained is actually it is said in the text. It irritated them. His silence irritated them. And he narrator also says that it was more than a criticism to them. तो अगर मैं उनको क्रिटिसाइज करता तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना उनको मेरी साइलेंस की वजह से इम्पैक्ट हुआ. सो इट एनॉयड देम. इरिटेट का मतलब है एनॉय करना, चिड़चिड़ाना या चिढ़ाना. तो ग्रामर जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इट्स अ कंपैरेटिव स्ट्रक्चर दैट्स एम्फसाइजेस ऑन इफेक्ट ऑफ साइलेंस. तो यहाँ पर एक जो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हम किसी बात को अगर हम समझते हैं कि उसको हम इस्तेमाल करके जो उसका मकसद होता है असल में उसके उलट करते हैं, तो इट्स कॉल्ड द कंपैरेटिव स्ट्रक्चर. कि इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव ट्राइड. तो यहाँ पर वो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है. आई फेल्ट दैट इट मेड देम nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them.
So this was the mess now going on. Their nervousness, that it increased the mistakes and the confusion. So that is actually said in the sentence. I felt that, और मुझे ऐसा लगा, I महसूस किया. So he got that very feeling because it made them nervous. His silence made them irritated first. They were terribly irritated, and then they became nervous, they became excited, and they started doing strange things. And they stepped on things, they put things behind them, and then they forgot them. And they were not later on when they tried to find them out, they were not able to find them. So this was going on there. Here the nervous means that is uneasiness, वो घबराए हुए थे, और excited again, वो बेचैन भी हो गए थे इसकी वजह से, क्योंकि वो वहाँ पर उनको वॉच कर रहा था. पहले तो उन्होंने काफ़ी चुस्कियाँ ली थी उसकी, अब वो वापस ही वॉज पेइंग इन द सेम कॉइन, अभी भी मैंने कहा. सो द ग्रामर हियर इज यूज्ड कॉज इफेक्ट चेन, जिसको हम कहते हैं. इमोशन लीड्स टू chaos. When you put your emotions in something, it will ultimately bring the chaos. So पॉलीसेंडेंट फिर से इस्तेमाल हुआ है, दैट इज रश्ड कन्फ्यूजन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्म आपको आ जाएगी क्योंकि मैंने ये नई टर्म इस्तेमाल की है. पिछले दो उनमें मैंने इसको अवॉइड किया था, लेकिन यू विल नाउ लर्न इट. बहुत सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं पहले 3 लेसन्स में, अब ये टर्म है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए. तो जितनी मतलब ये आएगा तो आप इसको गौर से सुनने की कोशिश कीजिए, तो इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे इंशाल्लाह. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश्ड द पाइज इन. अब जो उनके पास जो उनका जो पुअर जजमेंट था पैकिंग के बारे में, जो उनकी जानकारी बहुत कम थी, सो इट डिस्ट्रॉयड द पाइज. क्योंकि वो काफ़ी नर्म नाजुक थी, तो उन्होंने उसके ऊपर जो भारी चीज़ें थी, भारी भरकम चीज़ें उसके ऊपर पाइल अप कर दी, और उसके बाद दे स्मैश द पाई. तो यहाँ पर जो है स्मैश का मतलब किसी चीज़ को चकनाचूर करना, टू क्रैश इट बैडली. तो यहाँ पर ये चीज़ जाहिर होती है कि उसको कम अज़ कम इस बात का तो पता था कि जो मैं जानता हूँ पैकिंग के बारे में, ये लोग उतना भी नहीं जानते हैं. इट्स नो एविडेंट, इट्स नो क्लियर, क्योंकि इतनी सारी गलतियाँ उसने खुद नहीं की. थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गलतियाँ तो हमने उसमें देखा, लेकिन यहाँ पर तो गलतियों के बाद गलतियाँ हो रही है. So the grammar and literary device that it's a practical irony that is opposite of sensible packing. They were doing all the mess. उसके बाद they upset salt over everything. Upset here means they spill the salt everywhere. अब कोई शायद उनके पास जार में था या किसी लिफाफे में था, तो फट गया, और पूरे के पूरे जितनी भी चीज़ें वहाँ पर थी उन पर तो दे स्पिल इट एवरीवेयर. दैट सॉल्ट वाज स्पिल्ड एवरीवेयर. तो ये चीज़ होती है कि जब आपको पता नहीं होता है किसी काम के करने का, तो ये सारी बातें उसके साथ होती हैं. आप फिर इतना कोई मैसी काम करते हैं कि जो सारी चीज़ों के साथ फिर गड़बड़ हो जाती है. और लिटरेरी डिवाइस दैट्स द फ्रैगमेंट हैज़ बीन यूज्ड, दैट इज क्विक कॉमिक बीट. यहाँ पर है कि एक हल्के से एक्शन को बताया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ हो रहा है कि साल्ट जो है, हर चीज़ के ऊपर नमक छिड़कना. तो एक तरह से ये वो भी है, एक तरह का वो कि हर चीज़ को बर्बाद करना, अगर हम इस तरह से ले लेंगे उसको तो. लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर एक विजुअल इमेजरी भी आती है ह्यूमर की, कि किस तरह से उन्होंने उस सारे के सारे सिनेरियो को ख़राब कर दिया. एंड एज फॉर द बटर, अब तो मक्खन की बारी है. साल्ट का तो हो गया, नमक का तो हो गया, नमक तो सबके ऊपर पेर दिया उन्होंने. नाउ कम्स द बटर. आई नेवर सॉ 2 men डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने जो 2 penny की जो बटर थी उसके साथ इतना बुरा किसी शख्स ने दुनिया में कर दिया, वो मेरे सामने. मैं पहले आप इसको समझिए उर्दू में कि बड़ा ही एक पंचिंग टोन है इसमें. तो एन enormous amount of chaos is caused by a small piece of butter here. तो यहाँ पर जो हल्की सी बटर जो थी, वहाँ पर उनकी बटर की एक टिकिया थी, तो उन्होंने उसके साथ किया या कशीर पर गुदरो तिमो. ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइस दैट इज एक्सक्लेमेशन, दैट इज इमोशनल एम्फेसिस इज हियर, जहाँ हम देख रहे हैं एंड फॉर द बटर. तो इट इज़ समथिंग इमोशनल हैज़ बीन एक्चुअली डिक्लेयर्ड कि बटर के साथ क्या हुआ. तो ये यहाँ पर है. और हाइपरबोल भी है, एक्सट्रीम एग्जैजरेशन है, क्योंकि यहाँ पर वो इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है कि मैंने ऐसा कभी दुनिया में ऐसा नहीं देखा. हालांकि छोटी सी बटर है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाइपरबोल को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द कैटल. पहले अपनी चप्पल से उसको कहीं से खींच के लाया, स्लीपर से बाहर निकाला, और उसके बाद अब वो कैटल के अंदर इसको दाखिल करना चाहता था. दे अटेम्प्ट
एन एब्सर्ड सोल्यूशन, यानी वो जो करना चाहते थे दैट वाज नॉट गुड, क्योंकि ये चीज़ उसके साथ, तो बटर जो थी वो इस तरह से नाजुक थी, तो किसी डिब्बे में बंद करके उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए था, पैक करके रखना चाहिए था, लेकिन कभी वो उसको स्लीपर में और कभी उसको केटल में डालना चाह रहे हैं। दिस शोज़ द एब्सर्डिटी। और वोकेबलरी जो है, स्लीपर तो शू को कहते हैं, हालांकि उसके जो स्लीपर्स होते हैं, एक तो होते हैं जिसमें वो स्ट्रैप्स लगे होते हैं, दूसरा वो होता है जो हम बाथरूम में आमतौर पर जो स्लीपर इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर जो वो, तो ये उस स्लीपर की बात हो रही है, चप्पल नुमा बूट की तरह। तो उसके अंदर वो पहले था, और उसके बाद जो केटल है, वाटर पॉट, इसके अंदर आप वो रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ग्रामर और लिटरेरी डिवाइस, अब्सर्डिटी, फिर इलॉजिकल एक्शन फॉर ह्यूमर शो किया गया है कि बटर को जहाँ रखना चाहिए था वो तो डिब्बे में रखना चाहिए था, किसी बर्तन में अच्छी तरह से पैक करके रखना चाहिए था, बट दे वर डूइंग समथिंग नॉनसेंस विद इट, दैट वाज द इलॉजिकल एक्शन, दैट इलॉजिकल एक्शन इज शोन इन ऑर्डर टू क्रिएट द ह्यूमर, सो इट वुडंट गो इन। लेकिन जब वो कैटल के अंदर इसको डालना चाह रहे थे तो ये उसमें नहीं गई, एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जो कैटल के अंदर अब जा रहा था फिर उसको निकालना मुश्किल होता था। सो द कैटल बिकम्स ब्लॉकड, यानी पहले उन्होंने ज़ोर से उसको डालने की कोशिश की, फिर जब वो डाला फिर उनको लगा नहीं ये गलत हुआ, इसमें नहीं डालना चाहिए था, इट्स ए बैड थिंग टू डू इट, तो उन्होंने उसको अब बाहर निकालना चाहा, तो अब वो बाहर निकल नहीं रही है। दिस इज़ ऑल्सो हाउ द ह्यूमर इज being created. So the kettle becomes blocked. Now they are not in a position to उसको बाहर निकालने की जो कोशिश कर रहे थे उस पोजीशन में वो नहीं थे। सो पैरेलल स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं, दैट इज़ नीट कॉमिक बैलेंस, यानी एक तरह से काम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से जो काम हो रहा है उस काम से क्या निकल आ रहा है इसको समझने की कोशिश करनी है। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, किसी न किसी तरह से उन्होंने उसको बड़े ज़ोर से निकाला, एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, अब वहाँ पर एक कुर्सी पर रख दिया, एंड हैड सैट ऑन इट। अब ये एक मसला हो गया कि कुर्सी पर अब उसको रखो कहीं पर, चूँकि इट्स अ फ्राजाइल थिंग, और अगर आप इसके साथ गड़बड़ करेंगे तो इट विल मेक द मैस। तो अब यहाँ पर हैरिस ने क्या किया, कुर्सी पर रखा और फिर खुद कुर्सी पर बैठ गया, एंड इट स्टक टू हिम, और ये उसके साथ चिपक गई, एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। अब जब वो इसको अब उसमें पैक करने की बारी आई, अब वो ढूंढ रहे हैं कहाँ गई, लेकिन अब आप पता है कि दैट वो चिपकी हुई थी उसके सीट के साथ। सो बटर स्टिक्स टू हैरिस काजिंग कन्फ्यूजन, अब उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। सो हेयर जो स्क्रैप जो है इट मीन्स रिमूव बाय रबिंग, यानी किसी मुश्किल तरीके से उन्होंने जो दे डिड स्क्रैप इट आउट, तो फाइनली उसको बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे करके उसको निकाला। सो देन इट स्टक, इट अटैच्ड, ये चिपक गई हैरिस के साथ। और ग्रामर यहाँ पर जो है दैट्स एग्जैजरेटेड फिजिकल कॉमेडी, एक और टर्म यहाँ मैं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अभी मैंने अपनी एक बात जो सुनी उसको आप इस टर्म को आप छोड़िए, तो इसके कहीं और आएगी तो मैं बताऊँगा। इट्स एन एग्जैजरेटेड फिजिकल कॉमेडी इसको कहा जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे आगे। आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज। तो अब जब वो ढूंढ रहे हैं तो हैरिस ब्लेम कर रहा है जॉर्ज को, जॉर्ज ब्लेम कर रहा है हैरिस को कि आप ही ने उठाई है हमने। तो जॉर्ज अब कह रहा है नहीं, आई टेक एन ओथ, मैं कसम हल्फन कहता हूँ कि आपने उसको चेयर पर रखा, सॉरी मैंने उसको चेयर पर रखा, एंड स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, लेकिन अब वो घूर रहा है उस चेयर को कि मैंने यार अब इधर रखी थी, हकीकत भी यही है, ऊपर हमने पढ़ा कि हकीकत भी यही है, लेकिन आप वो देख रहा गई कहाँ। तो बहुत पहले हम जो थे अरबी पढ़ते थे तो उसमें एक जगह पर आता था इसी तरह की कोई चीज़ वहाँ गायब हो गई, तो वहाँ पर फिर हमारे सर ने कहा कि यहाँ आगे देखो क्या लिखा है, वहाँ लिखा था हल अखज़ जिन्न हल सरक सिरुन हल सरक लिसन, कि क्या इसको किसी जिन ने ले लिया या क्या किसी कोई चोर यहाँ से ले गया। तो इट्स द सेम सिचुएशन हियर। सो जॉर्ज इज एक्चुअली टेकिंग द ओथ, वो कस्में खा रहा है, कस्में उठा रहा है कि मैंने देखा आपने चेयर पर रखी, हैरिस से कहा रहा है, एंड स्टेयरिंग एट द एम्प्टी चेयर, और वहाँ चेयर पर तो थी ही नहीं है। और यहाँ पर जो है वोकेबलरी दैट इज टेक माई ओथ मीन्स आई स्वेयर, यानी मैं कसम खाता हूँ, और आयरानी है दैट इज ट्रूथ इज विजिबल बट अनसीन, जानते हैं मतलब बूझ के उन्होंने वहाँ पर रखी, लेकिन अब उनको वहाँ वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो थी ही नहीं, आप जानते हैं वो कहाँ गई। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. अब हैरिस जॉर्ज से कह रहा है कि मैंने आपको 2 मिनट पहले ये करते हुए देखा। हैरिस कंफर्म्स जॉर्ज क्लेम
कि अब जॉर्ज जो है, मुझे यहाँ कोई कन्फ्यूजन लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा कन्फ्यूजन है। आई टेक माई ओथ आई पुट इट, हाँ जॉर्ज कह रहा है कि मैंने इसको रखा नहीं, जॉर्ज इसको हैरिस ने नहीं रखा, और अब हैरिस उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और ही सेज दैट आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, मैंने भी आपको देखा ये करते हुए, नॉट ए मिनट अगो, जस्ट लिटिल बिट ऑफ टाइम अभी हुआ, तो उतना टाइम नहीं हुआ, मैंने खुद आपको देखा, सेड हैरिस। नाउ हियर एक्सप्लेनेशन इज ही कन्फर्म्स द जॉर्ज क्लेम, तो यहाँ पर वो जॉर्ज जो क्लेम कर रहा है उसको कन्फर्म किया जा रहा है, और माई सेल्फ को थोड़ा सा एम्फेसिस करके कि हाँ यार मैंने खुद तो मैंने देखा, तो थोड़ी सी एम्फेसिस है। और यहाँ पर भी ड्रामेटिक आयरानी है, अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो रीडर नोज द ट्रूथ, जो आप देख रहे हैं कि हमें पता है कि कहाँ है, वो पहले से ही क्लियर है क्योंकि नरेटर ने पहले ही उसको डिक्लेयर किया है, लेकिन आगे सिचुएशन जो हो रही है तो उससे जो ड्रामेटिक आयरनी है कि हमें पता है वो, लेकिन वो इधर उधर, तो इससे एक ह्यूमर को डेवलप करने की कोशिश की। आप इसको समझ रहे हैं ये कैसे होता है। देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्टेड एट वन अनदर एंड स्टेयर एट वन अनदर। अब वो इधर उधर बहुत कुछ घूमने के बाद, इधर उधर देखने के बाद, अब वो एक दूसरे के सामने आ गए और अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, स्टेयरिंग मतलब घूर के देख लेना एक दूसरे को। दे आर कन्फ्यूज्ड एंड हेल्पलेस बिकॉज द थिंग दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट वो उनको मिल नहीं रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूज्ड तरीके से, एक हेल्पलेसनेस उनकी सिचुएशन जो हो गई, तो दे वर इन ए फिक्स। अब वो क्या करेंगे, तो अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तक जिसको घूरना कहते हैं, तक तक ही बांध के देखना, दैट इज स्टेयर, लुक फिक्सली किसी के ऊपर, बिल्कुल नजरें जमा के किसी को देख लेना। और यहाँ पर विजुअल कॉमेडी फिर से है, दैट इज द फ्रोजन कन्फ्यूजन। अगर आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम भी करते हैं कि बहुत कुछ उन्होंने क्या फिर ऐसे रबूद गसन मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सर जॉर्ज। जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर जो हमारे सर ने कहा था कि ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, अब जॉर्ज इसको कह रहा है कि ही एक्सप्रेसेस डिसबिलीव कि ऐसा तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी मक्खन की टिकिया, तो अब कहाँ गई। तो इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स वेरी स्ट्रेंज। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये अंडरस्टेटमेंट ह्यूमर को जाहिर करने के लिए थ्रू काम टोन, यानी आप वो बिल्कुल थक हार के जो बात कर रहा है कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। सो मिस्टीरियस, सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। अब हैरिस कह रहा है कि ही ट्रीट्स द सिचुएशन लाइक ए मिस्ट्री, कि शायद कोई जिन भूत ले गया, जैसे मैंने अभी कहा। सो इट इज़ पजलिंग, जिसको हम पूरा असरार बोलते हैं उर्दू में। और ग्रामर सॉरी जो लिटरेरी डिवाइस है, इट्स मार्क ड्रामा, दैट इज ट्रिवियल इवेंट दैट इज ट्रीटेड सीरियसली। हल्का सा जो मामला हुआ लेकिन बड़े सीरियस वो हो गई, इसको आप बहस बन गया उनके लिए, हालांकि मसला कुछ नहीं था। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड। अब हैरिस के पीछे घूम के गया, तो उसने देखा कि वो तो हैरिस के साथ चिपकी हुई है। सो जॉर्ज ही फाइनली नोटिस द बटर, जो अटक गई थी उसके साथ, तो गॉट राउंड यानी पीछे से, वो उसके पीछे से गया, मूव बिहाइंड जिसको हम कहते हैं, तो उसने वो पा लिया वहाँ पर। और यहाँ पर डिलेड रेवलेशन है कि काफ़ी ज़्यादा जो भी हुआ, ये लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ ह्यूमर को बिल्ड करने के लिए, थोड़ा सा डिले किया गया कि कभी इधर वो वहाँ पहुँच भी रहा है लेकिन उसको देख नहीं पाता है, या फिर अचानक से वो इधर नज़र, तो इस तरह का वो विजुअल एक आपको इम्पैक्ट आएगा कि किस तरह से हम घर में चीज़ें देखते हैं, तो बार बार देखने के बावजूद फिर हम अचानक से उसको सामने देखते हैं, तो वैसा ही इनके साथ हुआ। इट ऑल्सो बिल्ड्स द ह्यूमर। अब मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, दैट इज़ वन मोर कैरेक्टर। अभी 3 लोग यहाँ पर इंसान है, लेकिन एक और जिसको मोंटमोरेंसी के नाम से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, इट्स एक्चुअली द डॉग। तो अब वो इसको शायद मुर्द इल्ज़ाम जिसको हम कहते हैं ठहरा रहे हैं। सो द डॉग इज़ नेचुरली इन्वॉल्व। तो यही यहाँ पर ऊपर वाली टर्म वो भी सजेस्ट कर रही है, मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। हकीकत तो ये है कि ये इसका काम है, वो कुत्ते के ऊपर वो मतलब ये सारा इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो दे एज एक्सपेक्टेड, आपको उसका मतलब ही होता है एज एक्सपेक्ट, यानी उनको यकीन है कि इसमें इसकी साजिश है, कुत्ते की साजिश है असल में। तो यहाँ पर भी प्रेडिक्टेबल कियास जो है कॉमिक एक्सपेक्टेशन को जाहिर करने के लिए कि एक
उनके अंदर जो कन्फ्यूजन है, कियोस है, उसका वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अब कुत्ते को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। सो मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वर्न दैट। पहले मैं कश्मीरी में आपको एक बात बताऊंगा कि जिसको हम कहते हैं कि मौजू बहुवन झुमन का जो पात्र वाच पैड भी है, तो ये ऐसी ही सिचुएशन है अंग्रेजी में। यानी मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इज इन लाइफ इज टू गेट इन द वे, टू गेट इन द वे, रास्ते में बैठ जाना, एंड बी स्वॉन एट, और फिर गालियां खाना। तो ये मोंटमोरेंसी हमेशा यही करेगा। तो आप वो कुत्ते को इसका इल्ज़ाम कुत्ते पर डाल रहे हैं। द डॉग एंजॉयज काजिंग ट्रबल। यहाँ पर वो ऐसा करता है कि फिर तो लोगों को बुरा लगता ही है। व्हेन यू कॉज ट्रबल फॉर समबडी, तो वो तो आपको ही विल कुछ ना कुछ तो अपनी इमोशंस को जाहिर करेगा ही। तो एम्बिशन का यहाँ मतलब होता है डिज़ायर, यानी उसकी ख्वाहिश ही ये है कि वो रास्ते में पड़ा रहे, रास्ते में बैठे और फिर गालियाँ खाए। सोन एट यानी गालियाँ खाना, स्कॉल्ड या नासक, तो गालियाँ एक तरह की नहीं, वो मतलब जैसे आप ले लें इसको। सो ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइस जो है, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। डॉग हैज़ बीन गिवन द ह्यूमन मोटिव्स, जैसे इंसान करता है तो वैसे अब कुत्ता भी कर रहा है, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा ये आपने सुना होगा पहले भी, इसलिए इस टर्म को मैंने इस्तेमाल किया है, वैसे ही रहने दिया। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ हुई है जब हम किसी चीज़ को ह्यूमन मोटिव्स या उसकी जो सलाहियतें हैं इंसानों की तरह देखते हैं, या उसकी जो इंस्टिंक्ट्स है इंसानों की तरह हम उनको देखते हैं। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats. अब मोंटमोरेंसी शायद पहले वहाँ नहीं था, अब आ गया, और जूं ही आ गया तो उन्होंने पहले उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि ये इसने किया जो बटर के साथ हुआ। अब वो इसी पर बात कर रहे थे, तो नाउ ही पुट हिज लेग इन द जैम। वो जाम पड़ा था तो उसमें उसने अपनी टांग डाल दी, एंड ही वर्रीड द टीस्पून। और उसके बाद जो जितने भी टीस्पून वहाँ पर कुछ बोतल वगैरह में रखे हुए थे या कटलरी के उसमें रखे हुए थे, जो उसका वो पाउच होता है अपना, तो उसने उनको भी इधर उधर ख़राब कर दिया। या उनको अगर आप वॉडी का मतलब एक और ले लेंगे कि मतलब ही स्टार्टेड लिकिंग देम, तो उसने उनको चबाना या उनको अपनी ज़ुबान से चाटना शुरू कर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और लेमन्स के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वो चूहे हों। तो यहाँ पर एक्ट एज इफ, जिसको हम कहते हैं कि प्रिटेंड करना, तो यहाँ पर भी कॉमिक एस्केलेशन है। कियास को इंटेंसिफाई करने के लिए मोंटमोरेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, और अब पहले उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने कियास को डेवलप किया है। नाउ ही इज़ आल्सो मेकिंग द मेस। और जैसा कि आपने देखा कि जैम के साथ उसने क्या किया, वो टीस्पून उसको उसने लिक करना, चबाना शुरू किया, और उसके अलावा जो लेमन के साथ भी उसने गड़बड़ी कर दी। तो ये सारा जो है इट इंटेंसिफाइज द कियास, और इसको हम कॉमिक एस्केलेशन कहते हैं। लिटरेरी डिवाइस में कॉमिक एस्केलेशन यानी और ज़्यादा ह्यूमर बढ़ रहा है। Harris said, I encouraged him. I didn't. Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want my encouragement. Harris blames the narrator unfairly. तो यहाँ हैरिस जो है कि वो मुझे कह रहा है कि I encouraged him. Harris said कि मैंने इसको ये किया। आई डिडेंट एनकरेज हिम। डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। अरे ऐसे कुत्ते को क्या एनकरेजमेंट की जरूरत है, यानी वो पहले ही इस तरह का कुत्ता है कि वो खुद ये ऐसे काम कर रहा है। और हैरिस ब्लेम्स द नरेटर अनफेयरली। उसका क्या इसमें है? असल में अब आप उस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो उनकी बातों में कोई भी जैसे दिलचस्पी नहीं ले रहा है, ये और ज़्यादा उनको चिड़चिड़ा रहा है। अब वो चाहते हैं कि वो भी कोई बात करे तो कम से कम वो अपनी भड़ास तो निकालें उसके साथ। और यहाँ पर जो है एनकरेज का मतलब हौसला देना, यानी सपोर्ट करना। और यहाँ डिनाइल एंड आयरनी है, यानी मॉकिंग आर्गुमेंट, एक दूसरे को जो हम ब्लेम करते हैं, इस तरह से यहाँ पर किया गया है। इट इज़ अ नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। अब यहाँ पर एक और चीज़ अजीब गरीब अंदाज से जो है, एक जिसको हम कहते हैं कि बिब्लिकल इल्यूजन हम इसको कहते हैं, कि जैसे कि हम कहते हैं कि बाइबल में है कि इंसान के अंदर पैदाइशी एक गुनाह जो उसने किया है, आदम से ही एक गुनाह करके वो आया है, तो उसको भुगतने के लिए यहाँ आया है, तो वो पैदाइशी तौर पर गुनाहगार है। इस तरह से बात की गई है, यानी एक तरह से जो एग्जैजरेशन की गई है कि अब कुत्ते को भी इसी तरह से उसको उसकी जो जिसको हम कहते हैं कि गलती को इस तरह से इस पैराए में लिया गया है, दैट इज इट इज नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम।
ये जो उसका बिहेवियर है, इट इज़ हिज नेचर एक्चुअली, ये उसकी फितरत में बसा रचा बसा है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, कि वो बाद में इस तरह के काम करता है। सो हियर ओरिजिनल सिन का मतलब है दैट इज द इनबॉर्न फॉल्ट, ये एक पैदाशी उसके अंदर एक गलती है। तो इसको जब हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइस में, इट्स कॉल्ड बिब्लिकल इल्यूजन, हम इसको कहते हैं, कि जिस तरह से वहाँ पर इंसान के बारे में कहा गया बाइबल में कि वो ओरिजिनल सिन उसके पास है, तो उसी की पादाश में वो इंसान दुनिया में आ गया है। तो इस तरह से एक तरह का वो ह्यूमर को एग्जैजरेशन के थ्रू ऐड करने की कोशिश की गई है। और अब अगर यहाँ पर हम कंक्लूडिंग साइट्स या कंक्लूडिंग इनसाइट के तहत हम देखेंगे, सो द एक्सट्रैक्ट इज मास्टर क्लास इन कॉमिक कियोस। यहाँ पर कॉमिक कियास को शो किया गया, जितना भी हमने आज पढ़ा, तो ये ह्यूमर तो है ही है इसमें, लेकिन एक जो कॉमेडी जो उसको बनाया गया है कियोस के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। सो जेरोम यूजेस डिफरेंट दीज जिनको हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं, एग्जैजरेशन, रिपीटिशन, आयरनी, पर्सनिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं टू शो हाउ ह्यूमन कॉन्फिडेंस collapses इनटू कन्फ्यूजन। तो ये बड़ा मसला है कि इसको हमें समझना चाहिए कि कॉन्फिडेंस किस तरह से कोलैप्स कर जाती है इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, इफ़ यू हैव गॉट सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस, तो इट कोलैप्सेस एक्चुअली, जो आपकी कॉन्फिडेंस होती है वो कोलैप्स करती है। द बटर एपिसोड, especially the Butter episode and Montmorency, that is the best part. और यहाँ पर it highlights the novel's central theme. Ordinary tasks become disastrous when ego, carelessness and interference combine. बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं तो यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी चीज़ें भी बड़ी ही अजीबोगरीब हो जाती हैं, कि आप डिज़ास्टर को एक तरह से जैसे आप इनवाइट करते हैं, कि जब आपके पास ईगो है, आप केयरलेस हैं, और इसके अलावा कोई इंटरफियर भी कर रहा है, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि डिज़ास्टर तो होने ही वाली है। और यहाँ पर इट ऑल दीज थिंग्स, दैट इज़ द ईगो, द केयरलेसनेस एंड द इंटरफेरेंस, it all combined and they actually making the packing one of the finest examples of timeless English humor. अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें इसमें लाई गई हैं कि वहाँ ईगो भी है, एक दूसरे से वो बात नहीं करते हैं, वो समझता है कि उनको ही नहीं आता है, ये समझते हैं कि इसी को नहीं आता है, तो इस तरह से ईगो वहाँ पर आ गया। और फिर एक दूसरे का अगर वो केयर करते तो पैकिंग शायद बेटर तरीके से होती, लेकिन ये सारी बातें जब इनको मिलाया गया, जब ये सारी चीज़ें एक जगह जमा की गई, तो नाउ it is making the packing one of the finest examples of the timeless English humor. ये आप याद रखें। So there is a very perceptive question, that is the name Montmorency, जो मैंने पहले जो इस्तेमाल हमने किया, इसके बारे में मैंने बात नहीं की, क्योंकि मैंने कहा कि जो कंक्लूडिंग इनसाइट्स है इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। इट्स नॉट एक्सीडेंटल एट ऑल, ये वैसे ही नहीं है कि एक्सीडेंटल, इट कैरीज क्लियर लिटरेरी नुआंस, ये आप याद रखिए। ये बिल्कुल एक जो लिटरेरी डिवाइस के तौर पर इसको यहाँ पर लाया गया है, इवन दो इट डज नॉट हैव ए डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग। अगर आप मोंटमोरेंसी की डिक्शनरी की मीनिंग देखेंगे, आमतौर पर मैं ये करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मिथिकल चीज़ें आती हैं, लेकिन ये कोई मिथिकल नहीं है। अगर आप मोंटमोरेंसी की उसको देखेंगे, इट इज़ लिटरल, इट इज़ हिस्टोरिकल। और ये लिटरेरी नुआंस किस तरह से है, पहले आप इसकी थोड़ी सी जो है हिस्ट्री में जाएंगे हम, कि मोंटमोरेंसी इट डजंट मीन डॉग एक्चुअली, और इट डजेंट मीन मिसचिफ और एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया है, मोंटमोरेंसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है, सो इट इज़ नॉट ए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसकी क्वालिटीज़ को बयान किया गया है, नहीं। इंस्टेड इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड हैज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये एरिस्टोक्रेट एसोसिएशन इसकी है कि ये एक बड़े ख़ानदान से जो है, इसका हिस्टोरिक और कल्चरल एसोसिएशन जो है मोंटमोरेंसी नेम की, दैट इज़ इट इज़ फेमस फ्रेंच नोबल फैमिली हाउस ऑफ मोंटमोरेंसी। पुराने ज़माने में हुआ करते थे वहाँ पर एक बड़ा ही ख़ानदान था वहाँ नवाबों का, या जिसको हम कहेंगे कि एरिस्टोक्रेसी जो वहाँ हुआ करती थी, ओल्डेस्ट एरिस्टोक्रेसी का लीनिएज जो है फ्रांस का, मोंटमोरेंसी समझा जाता था। एंड द नेम इज़ एसोसिएटेड विथ प्राइड, नोबिलिटी, ग्रैंड टाइटल्स एंड सोशल इंपॉर्टेंस। तो ये बड़ी चीज़ें, यानी फ़ख्रिया इनके साथ इनकी बात को, यानी इनकी जो लेगेसी जो है, उसमें ये सारी बातें पाई जाती है कि ये बड़े लोग थे, एरिस्टोक्रेट थे, और इनके बड़े बड़े टाइटल्स थे,
और इनकी नोबिलिटी और इनका प्राइड जो था समाज में, इसको एक मकाम हासिल था और इनकी एक सोशल इंपॉर्टेंस भी थी। और यूरोपियन कल्चर जो है, यूरोपियन कल्चर में दिस नेम दैट इज मोंटमोरेंसी, इट सजेस्ट्स द हाई स्टैट्स एंड डिग्निटी, इनके स्टैट्स और डिग्निटी को जाहिर करता है। अब यहाँ पर जो है सुच कहाँ पर है, तो जब जेरोम जब इसको इस नाम को इस्तेमाल करता है अपनी कॉमिक आयरनी में, तो यहाँ पर क्या है फिर, तो यहाँ ह्यूमर और सटायर को जाहिर करता है। ये एक छोटा शिकारी कुत्ता है जो लोमड़ियों को शिकार करने के लिए, यानी छोटे से बिल जो लोमड़ियों के होते हैं उनमें दाखिल होने के लिए उसका साइज छोटा है, और फिर वो इसको बाहर निकालने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये काफ़ी चुस्त था और काफ़ी बेखौफ लेकिन शरारती। और यहाँ पर इससे जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो ही इज़ एक्चुअली जो है उससे जो मकसद निकाला गया है कि इसके कैरेक्टर में एक वो शरारतीपन और कियास को क्रिएट करने के लिए, और एन्जॉइंग या एन्जॉयज बीइंग स्कॉल्डेड, यानी गालियाँ खाने के लिए ये इसको मतलब एक पैरेलल के तौर पर। अब वहाँ कहाँ पर मोंटमोरेंसी की बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़, और कहाँ पर इस तरह से इसको भी एक कंट्रास्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस बड़े से नाम को इस्तेमाल करके, ग्रैंड नेम जो इस्तेमाल हुआ है मोंटमोरेंसी का, एरिस्टोक्रेट है, डिग्निफाइड है, नोबल है, तो इसका ह्यूमर जो है कंट्रास्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। दैट इज़ द लॉफ्टी नेम फॉर ए रेडिक्यूलस बिहेवियर, यह आप याद रखेंगे। ए लॉफ्टी नेम हैज़ बीन यूज्ड फॉर ए रेडिक्यूलस, टू शो द रेडिक्यूलस बिहेवियर। यानी नाम से कुछ नहीं होता है असल में, अगर आपका नाम कुछ भी रखा जाए, लेकिन अगर आपकी खसाइल जो है, खसलतें जिनको हम कहते हैं, वो अगर सही नहीं है तो यहाँ से गड़बड़ भी मुमकिन है। तो इसको हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ आयरनी इज कॉल्ड नॉमिनेटिव आयरनी। तो आई होप कि ये अहम इसमें था। तो इसके अलावा जो लिटरेरी डिवाइसेस जो है, इसमें आयरनी को कंट्रास्ट बेस्ड बनाया गया है। नॉमिनेटिव आयरनी जो मैंने आपको बताया कि एक ग्रैंड नोबल नेम को डिलिबरेटली इट वॉज गिवन टू क्रिएट द ट्रबल्स, और इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर को इतना बड़ा नाम दिया गया है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि किस तरह से एक बड़ी चीज़ को हम उस बड़ी क्वालिटीज़ को हम नेगेटिव क्वालिटीज़ शो करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और जो नॉमिनेटिव आयरनी है उसको कैसे शो किया जाता है।